यहाँ पे ये अनाउंस करते हैं ना लाइव स्ट्रीम आराम से चल तो तुम्हें इसको करना है तू करेगा तो सबको बता दो। Very good morning to all of you. नरेश नरेश अमित को भी बता दो अमित को भी बता दो बैठ जाए सब। Respected seniors, mentors, esteemed elders from the Dwarka community and dear colleagues. On behalf of IMA Dwarka, I, Dr. Amit Tyagi, welcomes you all to the Samvad Part 2, a dialogue on the senior citizens issues. This gathering is our tribute to the wisdom and contribution of our elders. The subject we discuss today, health, independence, emotional well-being, financial and legal concerns, are not just the senior issues, they are lessons for all of us on how to create a society where aging is supported with dignity and respect. So I thank our all speakers, panelists and all participants for joining us today. Together, let us make this meaningful and memorable. Without wasting much time, I invite our President, Ma'am, Dr. Deepmala, to come and give the welcome address. Dr. Deepmala, ma'am. मैं कहने वाली थी तालियां तो होनी चाहिए पर आप लोगों ने सुन ली, मेरे बाद भी बजाइएगा या सबको मेरा सादर नंदन अभिनंदन। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप सभी यहाँ आए। वी आर IMA Dwarka, Indian Medical Association Dwarka is celebrating today Elders Day. It's not just a function, it's not just one celebration, it's a small tribute from our side to all of you. And it's not only tribute to our doctor fraternity, but we thought कि civic society members are also doing commendable job, so we should honor them also. तो मेरा आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आ सके। IMA Dwarka जो है this, as he said कि this is a Samvad 2. Samvad is a dialogue. Dialogue is between the medical fraternity and civic society. पहला संवाद हम कर चुके, कुछ लोग शायद उसमें भी आए थे. That was regarding the violence against doctors, and this is the second one. And we thought what better than Elders Day, क्योंकि elders हमारे जो हैं बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो सह रहे हैं लेकिन किसी के पास पहुंच नहीं पा रहा है। हम लोग नहीं उनको वहां तक रीच है हमारी। तो दिस इज द स्मॉल स्टेप फ्रॉम, एक हमारी तरफ से एक पहल है। तो मुझे लगता है कि हम इस बहाने एक दूसरे से जुड़ेंगे, बिकॉज आई पर्सनली फील कि आप सब जैसे एक बरगद का पेड़ है। आप देखते हैं आजकल बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमारे जो छोटे छोटे जो पेड़ हैं, जो शायद हम लोग हैं, हमारे जूनियर्स कोपले हैं, पौधे हैं, वो सब बह जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं बरगद के पेड़ जो इतने पुराने हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास हमारी इतनी पुरानी उनके पास कुछ ज्ञान है। और हम चाहेंगे कि आपसे हमको सीखें और हमारी जो आगे आने वाली जो नस्ल है उसको भी हम सिखा सकें। सो इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट
from our side to you, and I am very grateful to Dr. Prakash. ये उन्हीं का आइडिया था. I am very thankful to him, and I am very thankful to my team, strong team, office bearers, Dr. Amit Tyagi, Secretary, Dr. Tushar, the Vice President, Dr. Mukesh Verma. आप सब हैं तो हम ये काम कर सकते हैं. और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर एस.एन. मिश्रा सर को कि वो हमारे जो ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लीड करें. I request my chairperson to come. Please. Dr. Amit also, please. सर ये लो पेशेंट करके आएगा, वाईफाई वो सेलेक्ट कर लीजिएगा. कौन सा पेशेंट करके आया पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट वाईफाई. हाँ पेशेंट वाईफाई ओके. अब खुला उसको यूज करेंगे तब तो आएगा. उसके नीचे पासवर्ड मांगेगा. ठीक. कैटेगरी वन. Thank you, sirs. Let us now begin with the sessions. And the first session of the day is aging in place of the home, a subject that connects health, comfort, and independence. And I invite Dr. G.S. Grewal sir to speak on this important issue. Dr. G.S. Grewal sir is a senior consultant medicine and elder care at Fortis Escort Hospital, Okhla, and in practice since 1980. Sir was past president of Delhi Medical Association 21-22, past president and secretary IMA South Delhi branch, and honorary secretary Age Care India. Chairpersons for this session are Dr. Rajneesh Kumar. Dr. Rajneesh is Principal Director Neurology Max Hospital Dwarka. Dr. Rajneesh did his DM Neurology from AIIMS and is having more than 20 years of experience and worked with many hospitals. Second chairperson of this session, Dr. Sweta Singla. Dr. Sweta is a senior neurologist and practices at Kalprex Super Speciality Center Dwarka and Narayana Hospital Gurugram. She has done her neurology training at AIIMS Delhi. Dr. Grewal sir, please come. Thank you. Thank you. Thank you, IMA Dwarka, Prakash, my dear friend. Pleasure to see my dear friend Dr. S.N. Mishra. He may not remember, but in 1996, I think. I remember everything, sir. I contested my first election in the IMA Indian Medical Association, and Dr. Mishra was president in Arkipuram.
and I do remember how fondly he took me around the entire Archipuram area for my election. I still remain obliged to you, sir. Well, क्या कहूँ, दोस्त कहूँ, elders कहूँ, community कहूँ, how do I address you? दोस्ती इतनी आसानी से बनती नहीं है। दोस्त कह के धोखा दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा, दोस्त का सबसे बढ़िया रिलेशन है दोस्त। Okay, let's know each other. How many of you are above 60 years of age? How many of you are above 65 years of age? How many of you are above 80 years of age? Let's celebrate. Congratulations. And man, congratulations. I'm so proud of you. Lovely. Anybody here who's 90? How many of you want to go to 90? How many of you are staying in your own house? Means अपना घर, अपना not rented, अपना घर. Now, how many of you want to leave this house and go into an old age home? So you are a very sensitized lot of you. Now there are some reasons कि आपने ये बात कही, क्योंकि बहुत पुरानी एक कहावत है, home sweet home. My mother, she died at the age of 97 and she used to get frequently admitted in a Scots hospital. तो जब भी 3 दिन के बाद जब होश आता था, मैं पूछता था माँ किथे जाना है? Home sweet home. So home से बढ़िया कोई घोंसला नहीं. ये सुनी सुनाई बातें लाइफ में कितनी मदद करती हैं, इट्स अ बिग डिफरेंस. सो आई एम हियर टू शेयर विद यू सर्टेन फैक्ट्स एंड थैंक यू चेयरपर्सन. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट. कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने जो आपकी इस फैसले को सब्सटेंशिएट करेंगी कि हाँ, मैं चाहूंगा या चाहूंगी मैं घर पे ही रहूं. और अक्सर हम सुनते हैं, डॉक्टर्स जितने हैं, हम अक्सर ये बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब मैनू ना चलते फिरते जाना है. मैं चलती फिरती जाऊं, लेकिन पता क्या, चलते फिरते जाने के लिए चलते फिरते रहना पड़ता है. पलंग पे लेट के आप चलते फिरते नहीं जा सकते. वो जजमान भी वापस आके चला जाता है. So, I'm going to share certain facts, I'm going to share certain challenges and suggest some solutions. Now, the first fact जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है. 2 चीजें दुनिया में बहुत रैपिडली हो रही हैं. एक अर्बनाइजेशन और दूसरी एजिंग. रैपिड अर्बनाइजेशन से बढ़िया एग्जाम्पल द्वारका नहीं है. द्वारका इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन. कहां से कहां आए और सब यहां पे बस गए. एंड द सेम पेस इज रैपिड एजिंग. और इसकी जो फैक्ट्स हैं, जो ये बातें कह रहा हूं मैं, सब एविडेंस बेस्ड हैं. 2024 फरवरी में नीति आयोग, जो हिंदुस्तान का सबसे टॉप पॉलिसी प्लानिंग बॉडी है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड द पेपर इज सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया. पहली बात, हर शब्द की इंपॉर्टेंस है. उन्होंने माना कि रिफॉर्म्स की जरूरत है एल्डर्स की देखभाल में. सो सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, री इमेजिंग द सीनियर केयर पैराडाइम. ये फरवरी 24 में. इसकी टाइमिंग इसलिए जरूरी हुई क्योंकि जो फैक्ट्स आ गए, उन्होंने क्या कहा इसमें
that at the moment average population of elders in India is about 10% average. Kerala में 18 है, कहीं पे 8 है औसत. But they have projected, this is a government figure, that by 2050 it is going to reach 19.5%. This is the government figure. It can go up to 23 to 24%. So between every 100 people 25 लोग होंगे जो 65 साल से ऊपर हैं. बड़ी अच्छी बात है, हमारी तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हो रहा है. हिंदुस्तान में there is a phenomena of feminization in aging. अगर आप नीचे का देखेंगे, red line and blue line, the pink line is for the females and blue is for the males. नीचे देखेंगे, the blue line is longer than the pink line. But जैसे जैसे आप ऊपर जाइए 75-79 एज में, the pink line is getting longer. What does it mean? The fact is that 65 साल की उम्र के बाद औसत उम्र of a female is 18 years and औसत उम्र of a male is 14 years. So जितना मर्जी अपने मूंछों पे ताव दे लो, मरोगे बीवी से ताव. Now, so it is not just a great achievement, but single widows in India who are beyond 80 years, आपको शायद इल्म नहीं होगा कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं. आप सोचिए, जो लेडी आज 80 की है, 50 साल पहले जब वो 20 साल की थी, 1950s, उस टाइम औसत सोच क्या थी लेडीज की? हम तो जन्म जन्मांतर 7 जन्म इसी के साथ बंधे हैं, बच्चों के लिए पैदा हुए हैं. There was no concept of my right, my life. Now you expect this lady after 50 years to ask for her rights? It is foolish on our part. We'll have a word with ma'am who's 80. सोच नहीं है. हमने घरों में जाके देखा है कि एक माता जी living in a joint family with a son and daughter-in-law. I asked her, माता जी सुबह खाना क्या खाया? She says, बेटे 2 दिन से नहीं खाया. मैंने कहा क्यों नहीं खाया? मांगा क्यों नहीं? चलिए सारी उम्र नहीं मांगा, हम की मांगना है. So that is the social fabric in which we are living, but we are living longer. So therefore the challenges are coming. So this is another challenge in India, which is called feminization in aging. Prakash, how much time do I have? 20 minutes. 22. Please, 15 minutes, buzz me. The best study so far in India on elder care has been the longitudinal aging study of India. पिछले 12 साल से चल रही है. उसने कुछ फैक्ट्स बताए हैं that 75% of the elders beyond 65 years of age have at least one disease. 24% have at least limitation in one activity of daily living. कंघी करना, डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसमें लिमिटेशन है, अच्छी तरह नहीं कर पा रहे. 48% रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. इंस्ट्रूमेंट्स, चायदानी पकड़ना, गैस को ऑन करना. सो किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने में भी उनकी लिमिटेशन है. 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. 1 in 3 रिपोर्टेड हैविंग डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड 32% had low life satisfaction. ये longitudinal study के figures हैं. Then, according to the study, 18%, only 18% have health insurance. 28% are aware of the concessions by the government of India, various concessions. लेकिन उनमें से 50% से ज्यादा को पता नहीं है कि वो facilities को avail कैसे करना है. 70% of the elderly are dependent on everyday maintenance and 78% are living without any pension cover. So you can imagine कितना बड़ा burden है. And I make the statement that India will be a grey nation before it becomes a rich nation. And that is what is happening in society. So you all you are part of this transition जो हो रहा है. डरने की बात नहीं है, alternates भी है, डराऊंगा नहीं आप.
नाउ इतनी तादाद बढ़ने की साथ में, इतने प्रॉब्लम्स के साथ में, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन दैट दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद 75% हैविंग वन डिजीज, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इंपैक्ट जो पड़ रहा है, elders are demanding more healthcare services. They want to visit hospitals, they want to visit doctors, लेकिन डर लगता है. यहां पे भी मैं कह सकता हूं ये कि इन डॉक्टरों से 20% लोग अभी भी डर रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह ये डॉक्टर ग्रेवाल जो ना जाल बिछाएगा, कुछ करेगा, अभी दाखिल करा के ऑपरेशन करवा देगा. ये डाउट है एल्डर्स के दिमाग में दैट देयर कुछ घेरा डालने के लिए. So the system, WHO has used this word, this is not my word. WHO said that the healthcare delivery system is hostile towards the elders. And it is a fact. Therefore, there is a need to change that outlook amongst the medical community also. Then there is a rise in chronic diseases with their complications. बीमारियां केवल नहीं बढ़ रही, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं. That is happening because of people living longer. Then trained healthcare staff, उसकी इतनी expansion नहीं है जितनी के demand है. That is also a big challenge for quality life. Cost of care is high. Technology amongst elders, digital use, ये नीति आयोग ने भी कहा है और हम भी देख रहे हैं कि elders का टेक्नोलॉजिकल यूज, मैक्सिमम वो वीडियोस देखते रहेंगे उस पे, बट टू यूज इट टू देयर बेनिफिट, यूज इट टू देयर सेफ्टी, वो नहीं. एंड लास्ट बिगेस्ट चैलेंज दैट इज कमिंग इज लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज. आई विल आस्क ए क्वेश्चन जस्ट नाउ टू प्रूव हाउ इग्नोरेंट दे मे बी. इस राइजिंग पॉपुलेशन में देर आर सम पर्सनल एंड सोशल चैलेंजेस जो ऐड हो रहे हैं. वन इज एजिज्म. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस वर्ड एजिज्म? अब्यूज, मां बहन की गाली नहीं. That's right. We will come to that, but that's very important. Abuse is by somebody who's close to you, on whom you trust. Then there is the challenge of self-care, and the last challenge is of long-term care. So these are the personal and social challenges to the population जो कि longevity में आ गए. 65 years today is called middle age. 65 to 75 is called young old. And 75 to 85 is called old. ये केवल कोई किताब नहीं मिला लोगों को. ये इसलिए डेफिनेशन चेंज हुई है कि criteria of providing health services has changed. When we were in medical college, chairpersons in 73, 74, हम हिस्ट्री जब लिखते थे तो हम कहते थे very old man of 60 years. और आज किसी 60 ईयर को very old man कहते हो जेल में डाल देंगे. So look at the changing times. सीनियर वो भी मुश्किल हो जाता है. सीनियर सिटीजन क्यों लिखते? Now I'll just briefly talk about ageism. Ageism is a social menace. क्या है? किसी को उम्र की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, that is called ageism. So if I tell somebody, oh you are 70, you can't do this work. Now you are 72, you can't drive. So to discriminate on the basis of age is ageism. Like similarly we have sexism, we have feminism. Now it is ageism. And let me tell you, आप आंख बंद करके एग्जामिन करिए, आपके घरों में एजिज्म हो रहा है अननोइंगली. कोई फंक्शन पे जाना है, बस तैयार खड़ी है, चाचा जी को बोल नहीं उनको रहने दो, उनको बड़ी देर लगेगी उनको तैयार होने में. दैट इज एजिज्म. So it is happening and it's social challenge. Then comes abuse, as man was saying. Abuse is any act or harm to an older person which is carried out by someone they know and trust. Helpage India की एक स्टडी थी about 2 years back.
on abuse. 46% of abuse by family members was by their daughters. हिंदुस्तान में सब कहते हैं बेटियां नहीं करती. 46% abuse in family was by their daughters. So it is the family members that abuse. Then comes self-care. Elders, as people grow in age, they have a rich experience of various activities जो उन्होंने लाइफ में की, और इसके साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, मैं अपना शरीर जानता हूं, मुझे पता है मुझे क्या देनी है, मेरे को क्रॉसिंग बड़ी गर्म आती है, वो 1000 मिलीग्राम की गोली गर्मी करती है. Elders start getting fixed ideas, and there they lose out on self-care. What is self-care? Self-care is not just अपना संभाल करना. Self-care is what people themselves do to establish and maintain health. अपना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज करी जाएंगी, और prevent and deal with illness. जब बीमार पड़ेंगे उस वक्त दवाई के अलावा क्या क्या करेंगे, all that comes under self-care. For example, all these features, hygiene, nutrition, lifestyle, environment, ये सब self-care में आते हैं. And elders don't know how to practice self-care because they start assuming कि मुझे मेरा शरीर पता है. So बहुत पुरानी कहावत है, to learn something you have to unlearn something, and elders refuse to unlearn. 40 साल में यही कर रहा हूं, अभी भी तो यही करूंगा. There is the danger. And lastly, long-term care. Long-term care is, आज you are all, God grace, being able to walk down, come down to this, locate this hall and come. But please, be realistic. There will be a stage where you may need help. So to prepare yourself for that stage where you may not be able to help yourself, you have to start planning from now. And it's never too late. I'll just add one line at the end. So the demand, so these जो challenges मैंने आपको mention किए, they cannot be met by the elders themselves. आप खुद नहीं कर सकते ये. Neither can the government. Government हर घर में नहीं आ सकती. Nor by assisted living or old age homes. ये सब आपके घरों में आके आपको help नहीं कर सकते. So therefore, what do you do? In the coming years, the answer is WHO ने 2020 में they launched a campaign called the Decade of Healthy Aging. So अगर हमें नहीं पता तो हम किसी सियाने से पूछ लेते हैं, भाई बताओ क्या करें. तो हमें गाइड करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें उन्होंने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को एम्फेसिस दिया है कि सब मिलके करेंगे, सरकार पे डिपेंड मत करिए. So everybody has to come together, and this is one of the examples of what WHO is saying. Today's collaborative effort that IMA Dwarka has done is in that line only. 5 minutes. So 5 minutes, okay. 5.5? Okay. Now WHO has defined healthy aging. Please listen to every word. आप किसी एल्डर को पूछे क्या हाल है, मैं ठीक हूं, पर वो ठीक की डेफिनेशन होनी चाहिए. और डेफिनेशन क्या है? प्लीज, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. हेल्दी एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटी दैट एनेबल्स वेल बीइंग इन ओल्डर एज. तो फोकस बीमारी से हटके फंक्शनैलिटी पे आ गया है. आप कितने फंक्शनल हो, उम्र को छोड़ दीजिए. हाउ फंक्शनल यू आर. एंड लेट मी आई शेयर विद यू that this is the mostly repetitive, so I'll just skip over because of time. Now this is what I want to tell you: aging in place and functionality. I use the word functionality, बस ये शब्द याद रखिए. How functional am I? And WHO defines aging in place refers to the concept of older adults remaining in their homes and communities as they age,
WHO emphasizes the importance of supporting this through initiatives like age-friendly cities and communities, aging in place, and it also defines these are the various features जो WHO ने aging in place को define किया है. ऐसे नहीं कह देना किसी को ठीक है आप घर पे रहिए. घर पे रहने के क्या requirements होंगी, क्या challenges आएंगे. I'll just mention that. So the various advantages of staying at home is not just home sweet home. These are all the advantages that WHO has been able to. Not moving. Okay. So therefore, अगर आपने अपने घर में रहना है, रहना चाहते हो, I should say, then what are the requirements? I'm sharing with you the research done that ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी to remain in your house, to maintain a life of dignity, quality and safety. 3 things you require in your own house: dignity, quality and safety. All 3 तभी आपका घर आपके लिए comfortable रहेगा. So therefore, making home safe. There are so many interventions that are required. These days, whenever you go to any sanitary shop, they say जी वो non-slippery tiles का बड़ा fashion आ गया है, non-slippery चप्पल्स का आ गया है. So there are so many interventions. I don't want to go into details. Then, if you're staying alone, what you're doing here today is building a new community, building a new family. You're remaining in touch with each other. That is one way of making sure that you live happily in your own house. नया परिवार बन रहा है. Then reach out to the people whom you know. Learn about community resources. Very important. In every community today, the elders, the RWAs are making sure that they do some activity which is focused towards the elder's safety or quality of life. That is what it means, community resources. Then, these days, because of the demand by elders increasing, we are seeing daycare centers for elders. We are seeing elders range for help only during 2 hours of the day. भाई 2 घंटे आ जाओ, मेरा ये काम करा के चले जाओ, because they don't need the servant full day. That full day servant becomes a source of irritation to them. My mother used to turn them out. Get out. I don't want you anymore. So the concept is arising to help you remain in your house. मैं अकेला हूँ, क्या करूँ? So 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को जो 50 साल पहले पार्ट टाइम लेबरर्स होते थे, they are working. Then the last one, please read that. Be prepared for a medical emergency. This is a very important aspect which people don't do. मैं यहाँ तक उनको कहता हूँ कि someday get together in one person's house, call for an ambulance and see if I have to go to max emergency, मैं कैसे जाऊँगा. So many elders have died at home क्योंकि गाड़ी की चाबी नहीं मिली. So many elders have died at home क्योंकि जो गाड़ी पीछे खड़ी थी उसकी चाबी मिल नहीं रही, जो आगे खड़ी है उसकी चाबी मिल रही है. कैसे जाएंगे? So these are small tips, but they work very well to make your house safe. And last of all, my strong suggestion to all of you. I don't know, यहाँ से कोई फौजी background से है यहाँ पे? Oh, great. So they know this. Respect, salute to you, sir. Every fauji has in their files NOK, next of kin. It is mentioned in every fauji's file. कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम किसको इन्फॉर्म करें. All of you are फौजीज for your own life. एक next of kin अपना आइडेंटिफाई करिए. May not be your family member. It can be your shopkeeper of your area. Identify him or her. Make a contact with him. Tell him or tell her, मैं अगर गिर जाऊं तो ये घंटी दबाऊंगा, प्लीज मुझे आके हेल्प करेंगे आप. Keep them on a retainership. It makes your house safe for yourself. मैं अकेला हुआ, गिर गया तो मैं क्या करूं? So it's very important to have a next of kin for yourself. Costing, it costs much less to live in your own home than go to old age homes. So therefore, ladies and gentlemen, in conclusion, what is the way forward? All of you have faced the challenges. The way forward is that
today the community has to come forward. And I very proudly but humbly submit to you that we as an organization have started this program in South Delhi. We call it, where Harjeet Bhatti is our advisor, we call it the Elders for Elders program. Functionally fit elders can come forward to help the lesser functionally fit elders. They will be believed more. If I go to your Dwarka Senior Citizen Association और मैं कहूं कि मैं ये कर सकता हूं, तो I will be put under a question mark. ये क्यों आ रहा है, इसका क्या भला होगा. लेकिन आप ही का साथी आपको हेल्प करे तो you will believe him more. So what we are doing from the project side is, if ma'am agrees that I am ready to help out somebody. Help out doesn't mean to you make the person shift to your house. Help के भी definitions हैं. We as an organization will empower ma'am to become the link between that elder person and the services that are provided. That is all that is being needed. And when I use the word functionally fit elder, if you see these 5 domains, these are the 5 domains जिनके ऊपर हम elder को assess करते हैं to declare how functionally fit they are. So there is a physical domain, there is the functionality domain like for example frailty, sarcopenia, नई चीजें आई हैं. Then mental health. These are इनके assessment बाकायदा एक performer पे होती है, and after we have assessed, we say this person is functionally fit and can be serving the other elders. And we have started this project in South Delhi. I am very glad to share with you that 10 senior citizen associations have joined us. We have formed a team. We are working with them in their own association offices. We started a health hub in each of the association, and it is going great guns. We'll be reporting this on the 26th of October when we have our conference. So, okay, last 2 slides. पता क्या मेरे को आंख मार रही है कि मेरे को पैसे दे देना, मैं नहीं दूंगा पैसे. वो 2 इंच ज्यादा के लिए आजकल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है. Anyway, friends, this is the WHO guidance to all elders that if you have to look after the elders of this country, it is a pyramid. It starts from the lowest and goes finally to an age-friendly India, and this is what we are working at. And why we are working? Because could this be possible even 25 years ago, that at 90 somebody is asking, I still want to get married. So this is important. Our project is Age Friendly India, and thank you very much for your hearing. I request chairpersons to add if they want to say. Thank you, sir, for a very thought-provoking speech that you have given. There are 2-3 things I would like to add, and we can really take from this. One is, age is just not a number that we are going to think about. 60 है तो ये होगा, 70 है तो ये होगा. Aging is how you are going right from 20 to 30 years. जैसे हम learning की unlearning की बात कर रहे हैं. We were talking about learning and unlearning. Same thing we need to inculcate right from our 30 to 40 years, because हम जितना एज में चले जाते हैं हम उतने रिजिड हो जाते हैं थॉट से. सो ये चीजें हमारे अंदर शुरू से आनी चाहिए. हमें अपने बच्चों को भी समझाना है कि हमें लर्निंग और अनलर्निंग हर समय सीखना है. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. अब ऐसा नहीं होगा कि 60 साल में आ गए अब हम अनलर्न करके लर्न करने लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. तो ये हमें शुरू से लाना है. एंड वी नीड टू हैव अ वेरी गुड डायलॉग्स विद आवर चिल्ड्रन, बिकॉज एजिंग कैन नॉट बी रियली कंट्रोल्ड इन ऑल द एज होम्स. एज होम्स हमारे लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एशियन कंट्री में क्या बोल रहे हैं 2020 तक, जैसे सर ने बताया 30 तक देयर इज गोइंग टू बी अ सिल्वर सुनामी. इतने हम ओल्ड एज में रहेंगे और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. वी कैन नॉट डील विद देम इन ओल्ड एज होम्स. इट हैज टू बी डील्ड इन अ कम्युनिटी. एंड आज हम बोल रहे हैं, ये लोगों ने 10 साल पहले यूएस यूके में लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. देयर आर नंबर ऑफ पेपर्स ऑन दैट. सो लर्निंग अर्नर्निंग हमें शुरू से होना चाहिए. एक डायलॉग्स हमारे चिल्ड्रन के साथ हमें शुरू से होने चाहिए, सो दैट दे शुड ऑल्सो नो हाउ वी वॉन्ट टू गेट ओल्ड एंड हाउ वी नीड टू डू इन आवर कंट्रीज. सो ये बहुत जरूरी है हम लोग शुरू से ये चीजों पे वर्क करें. दूसरा, मैंने कोविड टाइम में ये चीज देखा था कि जब कोविड हो रहा था हम सब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था.
तो मैं अपने आज भी पेशेंट्स जितने भी आते हैं मेरे ओल्ड एज के होते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट, पार्किंसन से, हम उनको क्या बोलते हैं, आप अपने घर में लाइक सपोज योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर सपोज यू गॉट एन इंश्योरेंस कार्ड, वो एक जगह आप रखो ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप साथ में और उसको ढूंढना नहीं पड़े आपको कभी भी। सो दोज थिंग्स हैव टू बी इनकलकेटेड कि हम ये शुरू से करें सो दैट हम उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सके व्हेन इट इज नीडेड आउट। जब हम पारस में थे, आई वॉज वर्किंग इन पारस गुड़गांव, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि अबाउट 70 ईयर्स के ऊपर जो लोग रहेंगे फ्रॉम ए न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इफ दे वांट कि अगर हम हॉस्पिटल में क्या हम करते थे कि जैसे सपोज मैंने 1 लाख डिपॉजिट कर लिया, सो दैट इफ आई हैव एनी इमरजेंसी आई डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग, आई जस्ट नीड टू कम टू द हॉस्पिटल सो दैट एटलीस्ट दोस केयर कैन नॉट बी डिनाइड टू मी, या हमें लेट हो रहा है उस चीज के चलते वैसा ना हो। सो आई थिंक ये सारी चीज अगर हॉस्पिटल्स भी करती हैं तो हमें हेल्प होता है, स्पेशली फॉर एन ओल्ड एज पेशेंट जो अलग अलग रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, उनके लिए वो आसान हो जाता है। थैंक यू। Thank you very much, sir. It was a beautiful lecture, and very nicely you have narrated all the problems one person face as they age, and as a community, like what all we face as an aging population. As a neurologist, I think both of us see a lot of elderly patients, pediatric patients, more than 70, 75 years, and they have different disabilities because of their neurodegenerative disorders, either because of the stroke or Parkinson's or dementias, and its various subtypes. And I see, apart from the disease, the complications that you have very nicely enumerated. And definitely, I was thinking about the solutions, just like yours, that it could be a buddy care program, right? And different people from the same, colony or residential place can come together. And we can use the help of AI, and as the technology is growing, as the sir, Dr. Rajneesh sir has said, that creating that flexibility in mind to learn new things, to learn a little more about technology, and technology is becoming easier and easier, right? So using it for our advantage and connecting, just like the next of the kin or a buddy care program. So, that is probably going to be the solution, which would be economical and which is going to be sustainable. And with this, beautiful. Thank you, Dr. Rajneesh. Thank you, Dr. Sweta. And thank you, Dr. Grewal sir, for showing us how simple steps can make aging more dignified. Now, I request... all of our lady wives, not only elderly, young ones, they are not aware what to do on certain devices. So many things happen suddenly, sir. So we should maintain the folder after we bought. So that is very, very important. And if the organization wants, I can circulate the folder in the group, sir. Now I request, thank you sir, I request Dr. Prakash sir, Dr. Deepmala ma'am, Dr. Naresh Chandra, Dr. Mishra sir, sir, please come and felicitate the speaker and chairpersons. हरे भरे रहे। Thank you. Now let us begin with the second talk of this session.
And for this, the talk is fall risk assessment and prevention, a major health concern in the elderly. I invite Dr. Harjeet Singh Bhatti sir to speak on this important issue. Dr. Harjeet did his MD in geriatric medicine from AIIMS Delhi and a senior consultant medicine and geriatric medicine at Sitaram Bhartiya Hospital, Delhi. And to chair this session, I invite Dr. Puneet Girdhar sir, is not here. Dr. B.N. Pati sir. Dr. B.N. Pati sir, मैं सर के अंडर में काम कर चुका हूँ सर, जेआरशिप मैंने किया था सर के अंडर में. सर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड सर ने जेआरशिप में ही हम लोगों को पटेला और 4 आर्म फिक्सेशन वगैरह सब सिखा दिया था. सर वाज ex-HOD Safdarjung Hospital. He also worked at DDU Hospital and HOD Orthopedics at Ayushman Hospital. Second chairperson, Dr. Naresh Chandra, is head of the department Orthopedics, Indira Gandhi Hospital, and is doing joint replacement surgery, spine surgeries, trauma management, and deformity correction surgeries very frequently. Dr. Harjeet Singh Bhatti sir, please start the session. Thank you very much. Time allocated for this session is 20 minutes. Thank you. It is always a pleasure to listen to our mentor, Dr. G.S. गरेवाल. तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है. और जैसे एक कॉमन सेइंग होती है कि लड़की को समझना मुश्किल है पर एल्डर्स को समझना उससे भी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि गरेवाल सर समझ गए हैं. एंड ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी वेल अबाउट एल्डर केयर. एंड आई रियली थैंक डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी. इनका जो एक मोटिव है, डॉक्टर तो मोस्टली क्लिनिक तक सीमित रहते हैं, लेकिन एक असली डॉक्टर तभी बनता है जब वो क्लिनिक से कम्युनिटी में चला जाता है. So Dr. Prakash Lalchandani has taken a very good step and now he is reaching to the communities, which is a very good, and I especially thank Dr. Deepmala for organizing this. So आज हम लोग फॉल के ऊपर बात करने वाले हैं. मैं तो टाइम पे स्टिक करूंगा, बिल्कुल 20 मिनट्स में ही खत्म करना है. So today we are discussing about fall and सबसे पहले फॉल, डेफिनेशन ऑफ फॉल होता क्या है. स्ट्रोक होके गिर जाना, कोई एक्सीडेंट में गिर जाना, उसको हम लोग मेडिकल सेंस में फॉल नहीं मानते. फॉल का मतलब है कि जब आप अपने एक नॉर्मल पोजीशन से यू केम टू द रेस्ट, मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे भले नीचे गिर गए हैं, किसी लोअर लेवल ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं, उसे फॉल माना जाता है इन प्रैक्टिकल सेंस. एंड इसमें फॉल में पहली चीज है कि फॉल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका एक कहने के मोस्ट प्रिवेंटेबल, लेकिन एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बाद सबसे खतरनाक ये चीज है जो एल्डर्स में डेथ का रीजन बनती है. लेकिन ये टोटली प्रिवेंटेबल है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ चीजों पे ध्यान देके. अगर हम डाटा के ऊपर जाएं तो डाटा कहता है कि ऑलमोस्ट 30% एल्डरली, मतलब हर तीसरा एल्डरली साल में एक बार चांस रहता है कि फॉल हो सकता है. 70 इयर्स के ऊपर जाते जाते तो और इंक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट 40% तक चांसेस बढ़ जाते हैं. इंडियन एल्डरलीज के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, लेकिन बहुत वेरिड डाटा है, पर मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो भी 30-40% के आसपास ही कहता है, तो 14% to 53% की रेंज है. एंड जब भी फॉल होता है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा चांसेस हैं एल्डर्स के अंदर कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े. एंड हिप फ्रैक्चर उसमें सबसे खतरनाक चीज है जो फॉल के बाद होने के चांसेस रहते हैं. उसके अलावा ब्रेन इंजरी, और इंजरी तो किसी भी तरह की हो सकती है, बट हिप फ्रैक्चर एक कॉमन फाइंडिंग है. एंड अगर फॉल हो गया एक बार और उसके बाद भले ही फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक डर बैठ जाता है. डर का मतलब है कि पोस्ट फॉल ट्रॉमा इसको कहते हैं, पोस्ट फॉल सिंड्रोम, जिसमें हो सकता है कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा कि मैं जो काम पहले कॉन्फिडेंटली कर लेता था या कर लेती थी अब उसको मैं कर पाऊं. सो वो भी एक कंसर्न है, तो उसे कहते हैं फियर ऑफ फॉल. वो भी एक कंसर्न है जो रेज हो जाता है. तो अब फॉल होने के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं.
दो मेजर कंपोनेंट्स में, एक तो कंपोनेंट है इंट्रिंसिक कंपोनेंट और एक है एक्सट्रिंसिक कंपोनेंट। इंट्रिंसिक कंपोनेंट का मतलब है कि आपकी बायोलॉजी में उम्र के साथ साथ जो चेंजेस आए, जिसकी वजह से आपके बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, जैसे मैं अभी तो सीधा खड़ा हूं, लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए मुझे एक तरफ अर्थराइटिस हो गई, एक तरफ अर्थराइटिस है, उस तरफ बहुत पेन है, तो मेरी बॉडी अपने आप दूसरी तरफ को वजन लेके जाएगी। अब क्योंकि वो दूसरी तरफ को वजन लेके जा रही है, इसका मतलब अब इधर से ग्रेविटी मेरे ऊपर ज्यादा एक्ट करेगी। तो आप जो बायोमैकेनिक्स होते हैं, जो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट अपने आप को मेंटेन कर रही है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, बॉडी मैनेज की वजह से अगर वो डिस्टॉर्ट हो रही है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आएगा। मतलब आपकी बॉडी की कोई अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से फॉल का रिस्क बढ़ रहा है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब है कि बॉडी में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट में दिक्कत है। तो आज हम उन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में ये चीजें, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, गेट एंड बैलेंस। आप में से कितने लोगों ने असेसमेंट कराया है अपना गेट एंड बैलेंस का, कि मेरा चलना फिरना ठीक है, मेरा बैलेंस ठीक है? किसी ने कराया है? जी बिल्कुल। ये तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसीलिए आई थिंक द बेस्ट पार्ट, इसीलिए मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगा, ये कम्युनिकेशन विद कम्युनिटी, कि हमें डॉक्टरों के लेवल पे तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जनरल पब्लिक को पता नहीं, तो उसका फायदा क्या हुआ फिर? फर्स्ट टाइम ये हम लोग जितने भी एल्डर्स कम्युनिटी में रीच करते हैं, उसमें फर्स्ट टाइम। और उसमें से कुछ तो चीजें मैं आज आपको भी बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ही आना है। बट गेट एंड बैलेंस का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। आपका गेट कैसा है, चलना फिरना कैसा है, बैलेंस कैसा है, इसका असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है ऑब्वियसली वही आर्थराइटिस हो सकता है, कोई नर्व्स की डैमेज हो सकती है। पता चला डायबिटिक्स में टिंगलिंग, नमनेस, पैरों का काम करना बंद हो गया, ऑटोनॉमिक अंदर की नर्व्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, उस वजह से आपका गेट एंड बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। दूसरा है डिक्रीज्ड प्रोप्रियोसेप्शन। ऑब्वियसली इसका भी मैं मान के चल रहा हूं कि इनमें से किसी भी चीज का सिर्फ विजुअल और हियरिंग का लोगों ने करवाया होगा, क्योंकि वो तो देखना और सुनना तो जरूरी है, सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चलना फिरना है, जिसको ज्यादातर इग्नोर करते हैं। लेकिन डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन, अब प्रोप्रियोसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है कि अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी को अपनी पोजीशन का पता है। मतलब जब आप चल रहे हो, आपको नीचे देख देख के चलने की जरूरत नहीं है। आप अपना ऊपर चल रहे हो, आपके पैर अपने आप ही चलते जा रहे हैं, आगे कोई सीढ़ी वीढ़ी भी आ गई तो वो अपने आप ही ऊपर भी उठ जाएगा। वो ऐसा नहीं कि, क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स का जो पूरा सिस्टम है नसों का, वो बताता है कि आपकी बॉडी कहां पोजीशन है, जिसे सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। वो प्रोप्रियोसेप्शन है। एज के साथ साथ प्रोप्रियोसेप्शन का खराब होती है, पर इतनी खराब नहीं होती अगर उसको मेंटेन किया जाए। और दूसरी चीज फिर बीमारियों में भी हो जाती है। तो अगर वो प्रोप्रियोसेप्शन डिक्रीज है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई आप पता नहीं चला, कहीं पैर अटक गया और गिर गए। तीसरा है मसल टोन एंड स्ट्रेंथ। आज के डेकेड की अब सबसे बड़ी परेशानी सार्कोपीनिया होने वाली। सार्कोपीनिया एक बीमारी है और ये आईसीडी कोडिंग में भी आती है, मतलब लिटरल बीमारी है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। मसल्स की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, मसल्स कमजोर हो जाना और उनकी टोन चले जाना। इस वजह से स्पेसिफिकली थाइस की मसल, काफ मसल कमजोर हैं, खड़े हैं, खड़े खड़े गिर गए, पॉट पे बैठे हैं, खड़े होने लगे, बैलेंस नहीं मिला। सबसे ज्यादा हम देखते हैं जो फॉल के पेशेंट्स आते हैं, वो पॉट से उठने बैठने में ही गिरते हैं और चोट लगती है। तो उसको असेस करना बहुत जरूरी है। विजुअल एंड हियरिंग तो आप लोग सब लोग एक्सपर्ट हैं, ज्यादातर लोगों के चश्मा लगा हुआ है। डिक्रीज कोग्निशन। कोग्निशन कितने लोग समझते हैं कोग्निशन क्या होता है? आप लोग तो बहुत मायूस कर रहे हो मेरे को। हाँ, कोग्निटिव एबिलिटीज क्या होती है? कोग्निटिव एबिलिटीज में एक चीज तो सबको बोल देनी चाहिए, जो हर कोई कहता है मेमोरी कम होना, मेमोरी कम होना, ये तो हर किसी को पता होता है। लेकिन कोग्निशन का मतलब ऐसे सिर्फ मेमोरी नहीं है। हाँ, मतलब पूरा ओवरऑल ब्रेन का फंक्शन, एक पूरा
ब्रेन का फंक्शन जिसमें मेमोरी भी आती है, जिसमें ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड भी आती है, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी आते हैं, बॉडी ने कैसे फंक्शन करना है, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, कहाँ क्या बात करनी है, ये भी उसमें आता है। तो ये पूरा जो ब्रेन का फंक्शन होता है इसको कोग्निशन कहते हैं। उसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कोऑर्डिनेशन बनाना, पैरों पे कैसे चलना है, स्ट्रेस कैसे रहना है, ये कोऑर्डिनेशन भी कोग्निशन का पार्ट है। कोग्निशन कम होती है तो उसमें भी ये रिस्क हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजेज एंड मेडिकेशंस, कभी कभार एक गलत दवाई स्टार्ट हो गई और फॉल का रिस्क बढ़ जाएगा। और उसमें से कौन सी गलत दवाइयां होती हैं वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। पहले बीमारियां डिस्कस कर लेते, जैसे बीपी, हाई बीपी। हमारे पास बड़े सारे एल्डर हो जाते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं जी 150-60 तो मेरा ऐसे ही रहता है बीपी। कौन सी बड़ी बात है? वो बड़ी बात है, हमारे जो डॉक्टरों के लिए बड़ी बात है। मैंने देखा ज्यादातर पेशेंट वैसे डॉक्टर का बीपी बढ़ाने ही आते हैं क्योंकि वो इस तरह की बातें कहेंगे कि हमें लगता है कि सर आपकी जिंदगी अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी लग रही है मुझे। तो उसमें अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस कैन आल्सो हिप फ्रैक्चर, तो चांसेस है ही। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो डायबिटिक होंगे अच्छे से समझते होंगे उस चीज को, कि जिसमें कि आपके हाथों पैरों की नर्व्स जो हैं वो वीक हो जाए।